Hey guys, welcome back to my channel Exam Addict. So today we are going to discuss about UGC NT-NET 2020 most expected topics on higher education part 3rd, and this session is going to be presented by me, Swati Kanochia. But before that, please subscribe, like and share my channel Exam Addict. And if you want to check my profile, so आप यहाँ से check कर सकते हैं. Hey guys, welcome back to my channel Exam Addict. So today we are going to discuss about expected topics on higher education part 3rd. So the first topic is Samarth. What is Samarth? MHRD has developed an e-governance platform, Samarth, to provide quality education to students across all universities and higher education institutions. So, Samarth क्या है? Samarth सबसे पहले देखते हैं कि किसने डेवलप किया है. Samarth is developed by MHRD. So, MHRD ने डेवलप किया है, जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उसने डेवलप किया है. एंड दिस इज़ एन ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म. ये क्या है? ये ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है टू प्रोवाइड quality education to students across all universities and higher education institutions. So Samarth जो है वो of course education से related है, MHRD भी education से related है, ये ministry. So जो MHRD है उसने ये डेवलप किया है ये प्लेटफॉर्म, जो कि ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है, ताकि सो डैट क्वालिटी एजुकेशन जो भी स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके. राइट. Now moving on, the second point is it is e-governance platform. जैसा कि मैंने आपको first point में बताया है, that is it is e-governance platform and it comes under National Mission of Education in Information and Communication Technology Scheme. So ये e-governance platform है जो कि NMEICT के अंडर में आता है. इसको आपको याद रखना है, इसका भी फुल फॉर्म आपको याद रखना है. बहुत बार ऐसा हुआ है दैट जो इम्पॉर्टेंट स्कीम्स होती हैं उनके फुल फॉर्म्स पूछ ले जाते हैं. सो फुल फॉर्म क्या है NMEICT का? दैट इज़ नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्कीम. राइट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज Samarth is an open standard, open source architecture, secure, scalable automation engine for all universities and higher education institutions. It caters faculty, students and staff. So जो Samarth है वो ओपन स्टैंडर्ड, एक बहुत खुला हुआ एक आर्किटेक्चर है, सिक्योर है एंड स्केलेबल है. दैट मीन्स कि आप उसको मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल है. एंड दिस इज़ एन ऑटोमेशन इंजन. दिस इज़ लाइक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म. एक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है जिससे कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके एंड बहुत ईजिली गवर्न किया जा सके. ऐसी गवर्नेंस जो कि स्केलेबल हो, जिसको हम मेजर कर पाए, सिक्योर हो, जो कि like universities and higher education institutions में. Now it caters faculty, students and staff. So ये किसके लिए है? For the faculty के लिए भी है, students के लिए भी है and other staff जो भी होते हैं universities and higher education institutions में, उनके लिए भी ये है. Right. The last point of Samarth is that is implemented by NIT. So ये बहुत बार ऐसे questions आते हैं that ये initiative MHRD ने develop किया है. So implement किसने किया है? So Samarth is implemented by NIT, NIT. Okay, that's mean National Institute of Technology कुरुक्षेत्र ने इसको इम्प्लीमेंट किया है. डेवलप किसने किया है? MHRD ने डेवलप किया है. दिस इज़ एन ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड क्वालिटी education, okay, in universities and higher education institutions, and this is implemented by the National Institute of Technology Kurukshetra. Right. Now moving on, the second topic is MHRD launched a booklet. So जो MHRD है उसने एक बुकलेट लॉन्च की है. So the booklet जो है वो एक, उसका टाइटल बहुत इम्पॉर्टेंट है. So काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो भी बुकलेट्स होती हैं, जर्नल्स होते हैं, वो जिसने लॉन्च किया होता है उस मिनिस्ट्री का पूछ लेते हैं कि किसने डेवलप किया है, किसने लॉन्च किया है. सो जो ये बुकलेट है वो MHRD ने लॉन्च किया है. नाउ द टॉपिक क्या है उस बुकलेट का?
दैट इज सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19। देखिए आपको ये याद रखना है दैट ऑनलाइन लर्निंग या एजुकेशन से रिलेटेड मोस्टली जितनी भी स्कीम्स हैं, बुकलेट्स हैं, वो सब MHRD लॉन्च करती है, MHRD डेवलप करती है, MHRD के अंदर ही आता है। सो हमारा जो हायर एजुकेशन है या फिर एजुकेशन सिस्टम है वो MHRD के अंडर में आता है। सो दिस बुकलेट इज ऑल्सो लॉन्च्ड बाय द MHRD, दैट्स मीन सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19। दिस इज द टाइटल ऑफ दिस बुकलेट, right? Now the second point is NCERT and UNESCO New Delhi office developed this booklet to raise awareness of students and teachers on staying safe online, right? So जो NCERT है, that is the NCERT एंड यूनेस्को न्यू दिल्ली ऑफिस, ठीक है, जो न्यू दिल्ली में जो यूनेस्को का ऑफिस है, दैट यूनेस्को एंड NCERT डेवलप्ड दिस बुक। सो उन्होंने मिलके ये बुकलेट डेवलप किया है टू रेज अवेयरनेस। किस लिए? टू रेज अवेयरनेस ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ऑन स्टेइंग सेफ ऑनलाइन, कि आप ऑनलाइन कैसे सेफ रह सकते हैं। सो दिस इज़ डेवलप्ड बाय NCERT एंड यूनेस्को, ठीक है। सो दिस Safe Online Learning in the Times of COVID-19 booklet is developed by NCERT and UNESCO New Delhi but launched by MHRD, right? रीज़न क्या था इस बुकलेट को लॉन्च करने का? ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रेज अवेयरनेस, ताकि स्टूडेंट्स एंड टीचर्स अवेयर हो सके कि वो सेफ कैसे रह सकते हैं ऑनलाइन, राइट? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इट कंसिस्ट ऑफ बेसिक्स do's and don'ts that will aid parents and educators teach their children how to use the internet safely. So the next point is कि जो भी इस बुक में कंसिस्ट क्या है, इस ये जो बुकलेट है इसमें क्या है? सो बेसिक डूज एंड डोंट्स है जो कि हेल्प करेंगे पेरेंट्स को एंड एडुकेटर्स को भी, जो पढ़ाते हैं, जो पेरेंट्स हैं उनको, मीन्स एडुकेटर्स मीन्स फैकल्टी, टीचर्स, ठीक है। सो पेरेंट्स एंड टीचर्स को एड करेंगे, हेल्प करेंगे, सो दैट कि वो चिल्ड्रन को टीच कर पाएँ कि इंटरनेट को सेफली कैसे यूज़ करना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ एन इंफॉर्मेशन बुकलेट टू रेज अवेयरनेस। ये तो पता चल गया, टू रेज अवेयरनेस कि आप इंटरनेट पे यानी ऑनलाइन कैसे सेफ रह सकते हैं। ये है इस बुकलेट का ऑब्जेक्टिव। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट पॉइंट इज गोल। व्हाट इज गोल? The full form of goal is going online as leaders program. So आपको ये याद रखना है, you have to remember this, that goal is going online as leaders program. इसका full form है It is joint initiative of Facebook India with Ministry of Tribal Affairs to provide mentorship to tribal youth through digital mode. देखिए मैंने आपको अभी क्या बताया इसके पहले, मोस्टली जो भी एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम्स हैं, बुकलेट्स हैं, जर्नल्स हैं, या फिर कोई भी रिलेटेड टू एजुकेशन कुछ भी हो, तो वो MHRD के अंडर ही मोस्टली आता है। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर एक चीज़ MHRD के अंदर ही आए या MHRD ही लॉन्च या डेवलप करे। सो गोल इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दिस, दैट इट इज़ द जॉइंट इनिशिएटिव है। ये जॉइंट इनिशिएटिव है फेसबुक इंडिया का, मीन्स इसको इनिशिएट किसने किया है? ये जो गोल प्रोग्राम है इसको इनिशिएट किसने किया है? फेसबुक इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए यहाँ पर MHRD नहीं है, यहाँ पर है फेसबुक इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। सो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जहाँ पर भी इन्वॉल्व है, इट्स मीन कि ये ट्राइबल जो भी ट्राइब्स हैं उनसे रिलेटेड होगा, ठीक है। सो इट इज़ टू प्रोवाइड मेंटोरशिप टू ट्राइबल यूथ। ये किसके लिए है? ट्राइबल यूथ के लिए है, थ्रू डिजिटल मोड, कि डिजिटल मोड यानी ऑनलाइन मोड के थ्रू उनको मेंटोरशिप प्रोवाइड किया जा सके, राइट। सो गोल इज़ द गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स प्रोग्राम। इट इज़ द जॉइंट इनिशिएटिव है किसका? फेसबुक इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का, ताकि ट्राइबल यूथ को मेंटोरशिप प्रोवाइड किया जा सके थ्रू डिजिटल मोड, राइट।
The next point is it intends to upskill and empower 5,000 tribal youths in current phase to harness full potential of digital platform, to learn new ways of doing business, explore and connect with domestic and international markets. सो अभी तक इसका जो इंटेंशन है, ये कम से कम 5,000 ट्राइबल यूथ्स को इसने एम्पावर किया है, उनके स्किल को डेवलप किया है थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म, कि वो अपना पूरा डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसका फुल पोटेंशियल वो यूज़ कर पाएँ, हार्नेस कर पाएँ। किस लिए? फॉर डूइंग बिजनेस करने के लिए, नई नई डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स को भी एक्सप्लोर कर सकें, राइट। Now the next topic is PM E-Vidya. As you all know that previous video में मैंने विद्या 2.0 के बारे में आपको बताया हुआ है. Now this is for PM E-Vidya जो कि उसका old version है, right? Now moving on, the first point is of PM E-Vidya, the program for multi-mode access to digital online और online education launched. So ये किस लिए था कि ये बिल्कुल ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। ये एक प्रोग्राम है फॉर मल्टी मोड एक्सेस टू डिजिटल एजुकेशन लॉन्च्ड। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ, ये क्या क्या कंसिस्ट करता है, दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़ दीक्षा फॉर स्कूल एजुकेशन इन स्टेट्स एंड यूटीज़। जितने भी स्टेट्स हैं, ये यूनियन टेरिटरीज़ हैं, वहाँ पे जो भी स्कूल हैं उनकी स्कूल एजुकेशन के लिए दीक्षा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। एंड क्लास 1 to 12th क्लास के लिए टीवी चैनल पर क्लास प्रोवाइड किया जाएगा, 1 क्लास 1 चैनल, एक क्लास के लिए एक चैनल। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ रेडियो, कम्युनिटी रेडियो एंड पॉडकास्ट। सो ज़्यादा से ज़्यादा रेडियो का यूज़ किया जाएगा, कम्युनिटी रेडियो जो भी होते हैं, आप जो भी अलग अलग कम्युनिटी के जो रेडियोज़ होते हैं उनको, एंड पॉडकास्ट को भी, उसका भी यूज़ किया जाएगा एंड एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेशल ई कंटेंट फॉर विजुअली एंड हियरिंग इम्पेयर्ड। सो जो भी विजुअली जिनको प्रॉब्लम है देखने में, जो इम्पेयर्ड हैं, या हियरिंग में प्रॉब्लम है, सुनने में या देखने में प्रॉब्लम है, तो उनके लिए जो ई कंटेंट डेवलप किया जाएगा वो स्पेशल होगा, उन्हीं के लिए होगा। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। The next topic is the Manu Darpan. Okay, the Manu Darpan is an initiative by MHRD, Government of India, as a part of आत्मनिर्भर भारत. So ये एक इनिशिएटिव है MHRD का, आत्मनिर्भर भारत का ये पार्ट है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मॉनिटर एंड प्रमोट द मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड कंसर्न्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। देखिए, इस पैंडमिक में, इस कोरोना के टाइम पे जो भी स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं या जो भी इंडिविजुअल हैं, जो भी इस पैंडमिक में हैं, सो उनकी जो मेंटल हेल्थ को बैलेंस करना, उनकी मेंटल हेल्थ को देखना, उनकी जो हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उनको देखना बहुत ही ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड में अभी आप देख सकते हैं कि रिसेंटली जो डेथ हुई है, जो एक एक्टर हैं, सो वो भी मेंटल इश्यूज़ से सफ़र कर रहे थे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ऑल्सो, कि उनकी जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो मेंटल हेल्थ है, वो अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। सो जो भी उनको इश्यूज़ हैं, जो भी उनके कंसर्न्स हैं, उनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। सो इसका ऑब्जेक्टिव है टू मॉनिटर एंड प्रमोट द मेंटल हेल्थ इश्यूज़। तो जो भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं रिगार्डिंग स्टूडेंट्स या फिर टीचर्स के जो भी कंसर्न्स होते हैं, उनको मॉनिटर करना, एंड ऑल्सो जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो कंसर्न्स हैं, उनको प्रमोट करना ही इसका ऑब्जेक्टिव है। The next point is to facilitate providing support to address the mental health and psychological aspects during conditions like COVID-19 and after. So COVID-19 का जो टाइम, ये जो पैंडमिक का टाइम चल रहा है, इस पैंडमिक में भी एंड पोस्ट पैंडमिक ऑल्सो, जब ये COVID-19 ख़त्म हो जाएगा बाय गॉड ग्रेस, तो ये भी आफ्टर का भी हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर उनको सपोर्ट दिया जाएगा, उनकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, जो भी उनके कंसर्न हैं, जो भी उनको प्रॉब्लम है, जो भी उनके इश्यूज़ हैं,
उनको मेंटर किया जाएगा, उनको देखा जाएगा एंड साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो उनकी जो कंडीशंस हैं, जो भी मेंटल कंडीशंस हैं, जो भी उनकी कंसर्न्स हैं, उनको एड्रेस किया जाएगा। डैट मीन्स कि वो सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, ये याद करना है आपको कि मनोदर्पण का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, टू फैसिलिटेट प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू एड्रेस द मेंटल हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ड्यूरिंग कंडीशंस लाइक कोविड-19 एंड आफ्टर, ये बाद में भी इनको देखा जाएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, ये आज का हमारा पार्ट 3 है एंड आई विल ब्रिंग मोर, जितना भी मुझसे हो सकता है, आई एजुकेशन हो या फिर और भी जितने एनवायरनमेंट, पीपल एंड एनवायरनमेंट का भी मैं सीरीज़ लॉन्च करने वाली हूँ, वो भी आप देखिएगा। सो आपकी यूजीसी एनटीए नेट और जीआरएफ या सेट से रिलेटेड या गेट से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसकी पूरी सीरीज़ लेकर आऊँ। इस वजह, दैट इज़ द ओनली रीज़न कि ये थोड़ा सा लेट हो जा रहा है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपके लिए रोज़ डेली बेसिस पे एक सेशन लेकर आऊँ, एक लेक्चर लेकर आऊँ जो कि आपके लिए फ्रूटफुल हो। एंड जो भी आपकी क्वेरी हो वो आप कमेंट में या फिर कमेंट में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा जो मेल आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एंड मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं फीडबैक दूँ आपके जो भी डाउट्स हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर जो भी डाउट्स होते हैं सो मैं उसके लिए एक सेशन भी रखने वाली हूँ, डाउट क्लियरिंग सेशन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. Thanks for watching. Please subscribe, like and share to my channel Exam Addict.